Hello and welcome to the ISIS YouTube channel. My name is Milan. Today I am going to discuss the most important article from today's The Hindu newspaper. Okay, let's start the article. What is the article heading? A Delhi police suggests larger Supreme Court bench to review UPA bail cuts. This is the article heading and why we picked up this article. Let's go through the PYQ lens. Question number 56. Which article of the Constitution of India safeguards one's right to marry the persons of one choice? This is answer is Article 21. Question number 79 from 2021 prelims. This question was asked in 2019 prelims. Right to privacy is protected under which article of the Constitution of India? Here is also answer is Article 21. तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग कि आर्टिकल 21 इज already asked two times in UPSC previous year question. One is 2019 and one is 2021. That is why we picked up this article, and this article is directly linked with article 21. डायरेक्टली लिंक है आर्टिकल 21 के साथ. ये आर्टिकल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जितना इजी तरीके से हो सके आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप. So let's start. At first, we will know about the context, then judicial observation, then about the UPA Act, and then about Article 21. So, what is the context? That is the context. Additional Solicitor General S.P. राजू दिल्ली पुलिस के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपियर हुआ था, एंड उन्होंने ये कहा था कि जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है बिल की, जो प्रोविजन है यूएपीए एक्ट में, वो एक लार्जर बेंच पे रिव्यू होना चाहिए. दैट इज द केस. अब उन्होंने ऐसे क्यों कहा? बिकॉज हियर इज ए इशू which highlights the constitutional balance between national security concerns and Article 21's guarantee of personal liberty. ये एक एथिक्स का भी पॉइंट आ रहा है और साथ में नेशनल सिक्योरिटी का भी पॉइंट आ रहा है. हियर इज अ कोल लीगल डिस्प्यूट एंड जुडिशियल ऑब्जर्वेशन. उन्होंने लार्जर बेंच पे रिव्यू के लिए डिमांड उन्होंने क्यों किया? व्हाई डिमांड टू ए लार्जर बेंच? बिकॉज इन टू डिफरेंट टाइम्स सुप्रीम कोर्ट के टू डिफरेंट जजमेंट रिलेटेड टू यूएपीए बिल रेस्ट्रिक्शंस. तो पहला जजमेंट बीवी नागरत्न एंड उज्जवल भुइयां केस. ए बेंच ऑफ जस्टिस बीवी नागरत्न एंड उज्जवल भुइयां केस. बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन. जस्टिस कहा ने they said that bail is the rule and jail is the exception even under the UAPA when there is excessive delay in trial. अगर ट्रायल में डिले हो रहा है, एक्सेसिव डिले हो रहा है, तो बेल देना पड़ेगा, चाहे वो यूएपीए एक्ट क्यों ना हो. सेकेंड केस उमर खालिद केस. डिनाइड बेल. सुप्रीम कोर्ट डिनाइड बेल टू द 2020 दिल्ली रियोट्स accused. In 2020 दिल्ली रियोट्स accused Abdul Khalid Said and Taslim Ahmed challenging the September 2 order of the Delhi High Court denying them bail. तो कोर्ट में टू डिफरेंट टाइम जजमेंट आया यूएपीए जो बेल कंडीशन उसके बारे में. नेक्स्ट एक केस है के नाजिब केस 2021. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नाजिब केस 2021. which held that prolonged incarnation on delay in trial can override the statutory restriction on bail under section 43D(5) of the UAPA. उन्होंने कहा कि राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिराइव्ड हुआ था ये वाला जजमेंट से ही, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब केस. सो पॉइंट ऑफ जो इशू है वो है बेल रेस्ट्रिक्शन को लेकर, बेल रेस्ट्रिक्शन. इसीलिए सॉलिसिटर जनरल बीवी राजू अपील किया सुप्रीम कोर्ट में कि एक लार्जर बेंच पे एक इसका रिव्यू होना चाहिए. देन वी मूव टू द अबाउट द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 यूएपीए. इसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा क्योंकि ये न्यूज़ में है और इसके बारे में न्यूज़ में थोड़ा डिटेल्स में नहीं है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि वी शुड नो at least some basic details about the act.
each and every act has its own aims and objective. So let's see the its aims and objective. It is India's primary anti-terror law enacted in 1967 to prevent unlawful and terrorist activities threatening that India's sovereignty and security. That is the important one. First point you have to remember. Punishment क्या है? मैक्सिमम पेनल्टी है डेथ पेनल्टी. मैक्सिमम पनिशमेंट है क्या? डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट. Extraterritorial scope. Extraterritorial scope in the sense, in this case, under the law, EOPA law, EOA, PA law, and national as well as a foreigner can be charged. Applies to both Indians and foreigners even for offences committed outside India. That is the very, very important point you have to remember. In 2019 amendment, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि एन इंडिविजुअल, एक इंसान को जो जिसको लग रहा है कि हाँ इन्होंने कुछ किया होगा तो उनको टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं. Allows the central government to designate individuals, not just organization, as terrorist. Strict bail provisions. Under section 43 DV, bail can be denied if allegation appear prima facie true. Next, property attachment. NIA, Director General, National Investigation Agency. National Investigation Agency. NIA Director General can appear seizure or attachment of properties during investigation. That is also one important amendment. Then we will move to the point about Article 21. Article 21 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी 2 बार पूछ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स PYQ में. तो इसी तरह से इंटरलिंकेज करके यूपीएससी नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी के रडार में है आर्टिकल 21. एंड देन ये UAPA एक्ट जो है ये ऑलरेडी न्यूज़ में है, अभी भी आ रहा है. तो देयर इज ए हाई चांस इन 2026 और अपकमिंग प्रीलिम्स 2027 देयर इज वन क्वेश्चन इन प्रीलिम्स फ्रॉम दिस article. So let's start to know about the Article 21, some basics. I always told that we have to know some basics. Article 21 of the Indian Constitution guarantees the fundamental right to protection of life and personal liberty. Protection of life and personal liberty. It is available to all citizens and non-citizens alike. It means अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आए हैं तो उनके लिए भी ये लागू होगा. डिफरेंट टाइम्स सुप्रीम कोर्ट गिव डिफरेंट जजमेंट्स एंड उसका बेसिस पे आर्टिकल 21 के अंदर कुछ डायमेंशन आते हैं. वो एक बार डायमेंशन चलिए बार देख लेते हैं इन ब्रीफली. राइट टू प्राइवेसी जो पुट्टो समय जजमेंट में आया था बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस एनरिचमेंट जो मटेरियल होते हैं उसमें आप लोग अगर मेंस में अगर क्वेश्चन आए कि प्राइवेसी के बारे में तो ये आप लोग दे सकते हैं. राइट टू लाइवलीहुड रिकोगनाइज है जो कॉम्प्रोमाइज द राइट टू लाइफ. अच्छा ये वाला केस आया था ओल्गा तेली केस में, ओल्गा तेली केसेस के थ्रू आया था. राइट टू ए क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21 एज बिटवीन 6 to 14. So these all are the important data, facts and information from this article. यहाँ पर एक प्रैक्टिस MCQ है, प्लीज आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए. ये आर्टिकल अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के शेयर कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए. थैंक यू सो मच.